بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن خبر اچھی نہیں ہے عوام کے لیے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مہنگائی کے ایک اور جھٹکے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ حکومت نے مہنگی گیس کو اور مہنگا کر کے آپ کا دل جلانے کی ٹھان لی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق گیس کی قیمتوں پر سبسڈی مکمل ختم کر کے قیمتوں میں 30% اضافہ کیا جائے گا۔ گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوگا، سبسڈی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سبسڈی ختم کر کے قیمتوں میں 30% تک اضافہ کر دیا جائے گا۔ عوام مہنگائی بم کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے کا پلان بنا لیا۔ IMF نے قرض دینے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی شرط رکھ دی۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کا دعویٰ ہے کہ گیس کی قیمتوں پر سبسڈی مکمل طور پر ختم کی جائے اور گیس کی قیمتوں میں مزید 30% اضافہ کیا جائے۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گیس کی قیمتوں میں 121 روپے فی MMBTU اضافے کا امکان ہے، جس سے دونوں صوبوں میں گیس کی قیمت 629 روپے سے 750 روپے فی MMBTU ہو جائے۔ سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے قیمتوں میں 21 روپے فی MMBTU اضافے کا امکان ہے، جس کے بعد سندھ اور بلوچستان میں گیس کی قیمت 589 سے بڑھا کر 610 روپے مقرر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سوئی ناردرن گیس کمپنی کو 219 ارب روپے جبکہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو 53 ارب روپے کا ریونیو درکار ہے۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے وزارت پیٹرولیم نے ورکنگ تیار کر لی ہے اور قیمتوں میں ممکنہ اضافہ 1 جولائی سے ہونے کا امکان ہے۔ اور گیس مہنگی ہوگی لیکن ملے گی یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ کراچی کے علاقے جوہر چورنگی پر گیس بندش کے ستائے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور سڑک کو بلاک کر کے احتجاج کیا۔ مذاکرات کے بعد احتجاج تو ختم کر دیا گیا، مگر بدترین ٹریفک جیم رہا۔ دانیال سید سے بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت گلستان جوہر میں ہی موجود ہیں۔ دانیال، صورتحال کیا رہی؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے گلستان جوہر چورنگی پر۔ اب سے کچھ دیر قبل احتجاج کیا جا رہا تھا کنٹونمنٹ حکام کے خلاف، جو انہوں نے انکروچمنٹ کے نام پر یہاں پر آئے اور کئی دکاندار جو ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی، ہوائی فائرنگ بھی کی۔ دکاندار جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوئے اور اس وقت کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بدترین ٹریفک جام ہے۔ میرے کیمرہ مین عبدالواحد خان اگر دکھا سکیں کہ یہ گلستان جوہر چورنگی ہے، مین علاقہ ہے کراچی کا، جہاں پہ ٹریفک جام ہونے کے باعث مین یونیورسٹی روڈ، اس کے علاوہ شارع فیصل، راشد مناس روڈ، ان تمام روڈز کے اوپر اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے۔ مین جوہر چورنگی کے اوپر احتجاج کیا جا رہا تھا، جس کے باعث شدید ٹریفک جام ہوا تھا۔ احتجاج ختم ہو گیا ہے، پولیس نے یقین دہانی کرائی احتجاج ختم ہو گیا، لیکن ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت بھی جام ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 10 سے 15 ارب ڈالرز کے MOUs ہوں گے۔ توانائی منصوبوں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ سعودی ریال فراہم کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک میں اہم معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے 10 سے 15 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے جائیں گے۔ ہم 3 بڑے MOUs انشاءاللہ سائن کریں گے۔ ایک آئل ریفائنری ہے گوادر میں، ایک ہمارا MOU انرجی سیکٹر کا، خاص طور پہ آلٹرنیٹ انرجی کا، جو ونڈ پاور ہوتی ہے اور سولر ہوتی ہے، تو اس کا MOU ہے۔ اس کے علاوہ منرل ڈیولپمنٹ کا ہم ان کے ساتھ MOU سائن کریں گے۔ ہارون شریف کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ ریگوٹک منصوبے پر کوئی بات نہیں ہو رہی، تاہم سعودی قیادت پاکستان سے لانگ ٹرم پارٹنرشپ کے لیے آ رہی ہے۔ سعودی عرب ونڈ اور سولر منصوبہ میں سرمایہ کاری کرے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ MOU سائن ہونے کے 2 سال بعد انشاءاللہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی۔ سعودی عرب پاکستان کو دیامر بھاشا اور مہمن ڈیم منصوبہ کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا معاہدہ کرے گا۔ بجلی کے 5 منصوبوں کے لیے 1 ارب 20 کروڑ 75 لاکھ ریال کے MOUs پر دستخط ہوں گے۔ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 37 کروڑ 50 لاکھ ریال فراہم کیے جائیں گے۔ مہمن ڈیم کے لیے 30 کروڑ 76 منصوبے کے لیے 24 کروڑ 75 لاکھ ریال ملیں گے۔ جامشورو پاور پروجیکٹ کے لیے 15 کروڑ 37 لاکھ ریال فراہم کیے جائیں گے، جبکہ جاگران ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 13 کروڑ 12 لاکھ ریال فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریڈ زون سیل کر کے پولیس اور رینجرز کے 2000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ وزیر اعظم انہیں خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم ہاؤس لائیں گے۔ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔
सब तैयारियां मुकम्मल हो गयी। शाही मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वली-ए-अहद के एजाज में जोहराना देंगे। ऐवान सदर में अशाइया दिया जाएगा। दौरे के दौरान सऊदी वली-ए-अहद सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद के दौरे पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। 2 रोज के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फजाई हदूद बंद, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल और जुड़ा शहरों में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू होगा, जबकि पुलिस और रेंजर्स के 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात कर दिए जाएंगे। सऊदी अरब रॉयल गार्ड्स के 150 से ज्यादा एहलकार और पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और सऊदी रॉयल गार्ड्स ने रेड जोन का मुश्तरका दौरा भी किया। सऊदी रॉयल गार्ड्स ने रेड जोन में वाक़े मुख्तलिफ होटल्स का भी जायजा लिया। सऊदी वली-ए-अहद के दौरे की तफसीलात बताते हुए दफ्तर खारजा का कहना है कि सेनेट का एक वफ्द भी सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात करेगा। वफ्द में शामिल सऊदी वुज़रा अपने पाकिस्तानी हम मनसब वुज़रा से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने से मुतालिक बातचीत की जाएगी। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एमएमए के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये हुकूमत खला में खड़ी है, हमें ग्रेट गेम का निशाना बने। हमारी दोस्ती चीन से हिमालय से ऊंची थी। आलमी इदारे चीन को पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। हुकूमत कायम की गई है, ये खला में खड़ी एक खलाई हुकूमत है और इसके पास न विजन है सिवाय इसके कि इसको अंगूठा लगाने के लिए रखा गया है। हम एक ग्रेट गेम का निशाना बने हुए हैं, उसका शिकार हैं। हम ये कहा करते थे कि उनकी और हमारी दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी है, हिमालय से ज़्यादा ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है। लेकिन आज जब पहली मर्तबा हमारी वो दोस्ती एक माशी दोस्ती में तब्दील हुई। अहम खबर शामिल करेंगे। पाक फौज के ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। ISPR के मुताबिक सिबी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया बुनियादों पर ऑपरेशन किया और जेरे जमीन छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि पाक फौज की ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। ISPR के मुताबिक सिबी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया बुनियादों पर ऑपरेशन किया और जेरे जमीन छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया है। के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबर है कि रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के इफ्तिताह के मौके पर भी शहबाज शरीफ शेख रशीद के आसाब पर सवार रहे। वजीर रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का ऐलान कर दिया और अपोजिशन के 40 रहनुमाओं के जेल जाने की भी पेशगोई कर दी। शहबाज शरीफ की PAC की चेयरमैनशिप शेख रशीद को हजम न हुई। थल एक्सप्रेस के इफ्तिताह के मौके पर भी ऑपोजिशन लीडर को अदालत जाने की तड़ियां लगाते रहे। रेलगाड़ी रावलपिंडी से भकर स्टेशन पहुंच गई, लेकिन थल एक्सप्रेस पर सवार शेख रशीद की सुई PAC की चेयरमैनशिप पर ही अटकी रही। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें PAC से निकाल कर बताऊंगा। इससे पहले रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर नित नए दावों के मास्टर शेख रशीद ने नया शोशा छोड़ते हुए दावा किया कि 40 बंदों की लाइन लगी है, चंद माह में सब जेल जाएंगे। 40 बंदे गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। वजीर रेलवे का मजीद कहना था कि डाकू मुल्क को लूट कर खा गए, अब IMF के पास जाना मजबूरी है। कौम इमरान खान का साथ दे जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। और वजीर रेलवे शेख रशीद जहां रेलगाड़ियों को पटरी पर चढ़ा रहे हैं, वहीं रेलवे में तालीम के शोबे को ट्रैक से उतार भी रहे हैं। तालीम दुश्मनी का सबूत देते हुए लाहौर, कराची और कोटरी में कायम 3 स्कूल्स बंद कर दिए। अस्पतालों को प्राइवेट करने का हुक्म भी दे दिया। शेख रशीद एक जानिब तो ट्रेनों के इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब रेलवे में तालीम के शोबे को भी खत्म करते जा रहे हैं। तालीम दुश्मनी का सबूत दिया, लाहौर, कराची और कोटरी में कायम 3 स्कूल्स बंद कर दिए। रेलवे में बेहतरी के दावेदार वजीर रेलवे हाथ धोकर तालीम के पीछे पड़ गए। शेख रशीद ने रेलवे मजदूरों के लिए कायम 3 स्कूलों को बंद कर दिया।
बंद होने वाले स्कूलों में रेलवे गर्ल्स मिडिल स्कूल म्यू गार्डन लाहौर, बॉयज हाई स्कूल कोटरी और रेलवे बॉयज हाई स्कूल पिपरी कराची शामिल हैं। स्कूल की बंदिश के इकदाम से रेलवे मजदूरों के बच्चे सस्ती तालीम से महरूम हो गए हैं। ज़ेरे तालीम बच्चों को करीबी रेलवे स्कूल्स में नए सिरे से दाखिला लेने की हिदायत कर दी गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक स्कूलों को तलबा की तादाद कम होने के बायस बंद किया गया। स्कूल बिल्डिंग्स को मुतालिका डीएस के सपोर्ट कर दिया गया, जबकि स्टाफ को मुख्तलिफ स्कूलों में एडजस्ट कर दिया गया है। शेख रशीद ने तालीम पर ही नहीं रेलवे मुलाजमीन की सेहत पर भी हमला कर दिया और रेलवे अस्पतालों को भी प्राइवेट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस पर रेलवे मुलाजमीन में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होने लगी है। पंजाब में अपोजिशन के 101 तरक्याती मंसूबों से महरूम रहेंगे। हुकूमत ने सिर्फ पीटीआई के अरकान असम्बली और इत्तेहादियों के 181 हलकों के लिए तरक्याती फंड जारी कर दिए। हर हुकूमती अरकान असम्बली के हलके पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में अपोजिशन के 171 हलके तरक्याती मंसूबों से महरूम रहेंगे। केएमसी की जानिब से एंटी क्रोचमेंट ऑपरेशन के मुतासरीन में दुकानों की अलॉटमेंट की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मेयर कराची तकरीब अधूरी छोड़कर अपने दफ्तर चले गए। इसी हवाले से हसन अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। में इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन के मुतासरीन को मुतबादल दुकानों की अलॉटमेंट की तकरीब, कुछ दुकानदार खुश तो कुछ नाखुश। दुकानदारों के एहतजाज पर तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मुतबादल दुकानों की कुरानदाजी की तकरीब केएमसी बिल्डिंग में मुनक्किद हुई। पहले मरहले में 1445 दुकानदारों को मुतबादल जगह फराहम की जा रही है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में केएमसी ने भी गलतियां की। इंसदादे तजावुज़ात मुहिम से एमक्यूएम का सियासी नुकसान हुआ। हम एक्सेप्ट करते हैं कि माजी में गलतियां हुई हैं। अब जाहिर है उसमें आपका क्या कसूर? आपका तो कोई कसूर नहीं है। आपको तो केएमसी ने किराएदार बना के बिठा दिया वहां। अब एक ऑर्डर ऐसा आता है कि नहीं भाई ये गलत किया है आपने, ये एमिनिटी प्लॉट्स हैं, ये फुटपातें हैं। तकरीब में दुकानदारों का मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। कई मुतासरीन नई जगह मिलने पर खुश थे तो कुछ ने केएमसी के इक़दाम को नाकाफी करार दिया। पहले खोड़ी गार्डन के दुकानदारों ने एहतजाज किया, जो मेयर कराची की यकीन दहानी पर खत्म हो गया, जबकि महराज मार्केट के एहतजाजी दुकानदार मेयर कराची की यकीन दहानी को किसी खातिर में ना लाए। तकरीब बदनज़मी का शिकार हुई तो मेयर कराची तकरीब अधूरी छोड़कर अपने दफ्तर में चले गए। अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी यू टर्न के माहिर निकले। थिएटर अदाकारों के रक्स को देने वाले खुद रक्स के दीवाने निकले। इसी हवाले से ज़ैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट देखते हैं। तो ये हैं जनाब सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान, जो कहते थे थिएटर अदाकारों को सीधा कर देंगे। मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता। जनाब की वजारत के साए तले एक शो सांझा पंजाब पेश किया गया अलहमरा आर्ट सेंटर में, जहां मौसूफ खुद सबके रक्स देखते रहे। मौसूफ सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत थिएटर अदाकारों के रक्स पर उनकी तारीफ भी करते रहे और स्टेज पर आकर उनसे मिलते भी रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत साहब, कहाँ गया आपका वो बयान जिसमें सब थिएटर सीधे करने थे? या वो अब आपकी डोमेन में नहीं आ रहे, या आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या है? और इस बुलेटिन से इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।